Welcome back, guys. So it's time to solve the today's lead code daily challenge 743 network delay time. So हमें दिया है. So the question says you are given a network of n nodes labeled from 1 to n. You are also given times. जो एक directed edges u to v, where wi denotes the time taken for the signal to travel. We will send a signal and return the time for all the n nodes to receive the signal. If it is impossible for all the n nodes to receive the signal, return -1. सो हमें एक n नोड्स का नेटवर्क दिया गया है लेबल्ड फ्रॉम 1 to n, एंड हम एक सिग्नल ट्रांसफ़र कर रहे हैं फ्रॉम नोड के टू ऑल द रेस्ट ऑफ द नोड्स है. मतलब n-1 नोड्स को हम एक के नोड से सिग्नल ट्रांसफ़र कर रहे हैं और हमें बताना है कि कितने टाइम में सभी जो रेस्ट नोड्स हैं उनको ये सिग्नल मिल जाएगा. और अगर इम्पॉसिबल है कि सबको सिग्नल नहीं मिल रहा है, देन वी हैव टू रिटर्न द -1. सो अगर आपने ग्राफ्स पढ़े होंगे तो द प्रॉब्लम इज़ वेरी सिमिलर टू डिजिक्स्ट्रास प्रॉब्लम. डिजिक्स्ट्रा जो एल्गो है वो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है. एंड लाइक सिंगल सोर्स पाथ टू एवरी अदर वर्टेक्स इन द ग्राफ. सो उसी को अप्लाई करते हुए हम ये अपना प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपना एक एडजेंसी लिस्ट बना लेंगे, बिकॉज अगर हम टाइम को लेके चलेंगे तो उतना उसका भी एक सॉल्यूशन है, बट वी ट्राई टू सॉल्व इट लाइक प्योर डिजिक्स्ट्रा. नाउ हम आइट्रेट करेंगे ith टाइम from the times given, and we will push adj list ith टाइम का जो 0th इंडेक्स पे हमें सोर्स वर्टेक्स दिया है, एंड वी विल पुश बैक द टारगेट node and the cost associated with it. We have to change a little bit here. Instead of int, we are pushing pair of int comma int. So now we are done with making our adjacency list. We will call our dijikshatra's function, passing the adjacency list comma number of nodes and the source vertex k. And now I will handle all the cases inside this. Int my Dijikshatra. सो इतना सब एडजेंसी लिस्ट बनाने के बाद, और इसके बाद हम बेसिकली डिजिक्स्ट्रा अप्लाई करेंगे यहाँ पे. एंड यहाँ पे n की मैं k की जगह फॉर बेटर वैरायटी करंट वर्टेक्स लिख देता हूँ. वी आर यूजिंग अ क्यू ऑफ पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट माई क्यू. सो बेसिकली क्यू में क्या होगा कि जो पहला पेयर का पहला वेरिएबल है वो स्टोर करेगा करंट टाइम टेकन टू रीच सिग्नल टू द नोड, एंड नोड here reference the second variable of the पेयर. सो यहाँ पे प्रायोरिटी क्यों लेंगे मैं आपको आगे बताऊँगा. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल पुश द सोर्स वर्टेक्स, that is current vertex. So we all know that time taken from the source vertex to reach the signal to that vertex is 0.
and we will iterate till our priority queue is empty, and inside this we have to do something. Also we will take a vector of int cost size of n plus 1 and initialized with int max, just to take the minimum cost, or like instead of cost I will take it at time taken. So in the time taken vector we are storing the minimum time taken to reach the signal to that node. So now inside the queue traversing we will first सबसे पहले हम अपना जो भी टॉप का जो नोड है जो भी है उसको पॉप कर देंगे, एंड नाउ वी विल ट्रैवर्स all its adjacent nodes adj list of the top vertex dot second. Inside this, if cost time taken, if time taken by signal to reach the adjacent node is greater than time taken by signal to reach the current vertex plus the adjacent nodes dot second, then we will just update this variable. Let's copy this and also this, and also push the vertex in adj nodes dot, and we are storing the first, and also the cost of adj nodes dot first. Now we are done with this, and also we have to initialize the time taken of the source vertex to be 0, and now we are done with the Dijkstra traversal. तो हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे, जो भी टॉप वर्टेक्स हमारी करंट जो भी पॉप आउट हो रहा है उसके एडजेंसी लिस्ट को हम ट्रैवर्स कर रहे हैं, और हम चेक कर रहे हैं कि इस वर्टेक्स पे हमें हमारे सिग्नल को पहुँचने में जितना टाइम लगा प्लस अगले वर्टेक्स पे पहुँचने पे जितना टाइम लगेगा, अगर वो सम करेंटली जहाँ वर्टेक्स पे हम जा रहे हैं वहाँ पे पहुँचने के टाइम से छोटा है, देन वी विल अपडेट द टाइम जहाँ पे सिग्नल पहुँच रहा है उसको इस सम से अपडेट कर दें। क्योंकि अगर मान लो किसी और पाथ से हम यहाँ पे पहुँचे हैं तो हमारे लिए अगर ये पाथ फिजिबल है और छोटा भी है, आई मीन ऑप्टिमल पाथ है जिसमें हमें कम टाइम लग रहा है, सो वी विल बी चूज़ दिस, बिकॉज यहाँ पे पूछा है कि इफ़ टाइम टेकन टू रिसीव ऑल द सिग्नल। सो ऐसा तो होगा नहीं कि हम 1 मिनट पे यहाँ भेज रहे हैं और दूसरे मिनट पे यहाँ चालू कर रहे हैं, तो हमें शॉर्टेस्ट टाइम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि 1 मिनट पे जैसे मतलब लाइक 0 टाइम से स्टार्ट होगा तो हर जगह पे सेम ट्रैवर्सल स्टार्ट हो जाएगा। तो शॉर्टेस्ट जो भी पाथ है वो फाइंड करने का ये होगा कि एक सिंगल सोर्स से ही हमारा जो भी शॉर्टेस्ट है वहाँ से सिग्नल ट्रैवर्स होगा, एंड देन जो भी बीच में लैग होगा वो हम कवर अप कर लेंगे। नाउ आफ्टर दिस
we will just check if cost of I is equal to int max, then we will return -1, else we will return maximum element of cost time taken dot begin. we are using सो आपके मन में आप ये सवाल ये सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ +1 क्यों लिखा, बिकॉज ये 1 to n वर्टेक्सेस हैं, आई एम टेकिंग द साइज ऑफ n+1 और ट्रैवर्स भी मैं 1 से n कर रहा हूँ, तो मुझे 0th इंडेक्स को छोड़ना पड़ेगा। एंड यहाँ पे टाइम टेकन है एंड देन ऑल्सो यहाँ पे भी टाइम टेकन करना होगा, ऑल्सो यहाँ पे भी टाइम टेकन। I think we are done. Now let's run. It's working fine. सबमिट करके देखते हैं। It got accepted. So ये था हमारा क्वेश्चन। हम सबसे पहले डिजिक्स्ट्रास अप्लाई करेंगे टू फाइंड द मिनिमम कॉस्ट सिंगल सोर्स वर्टेक्स से हर वर्टेक्स पे रीच करने के जो भी शॉर्टेस्ट पाथ हैं उसको फाइंड करता है डिजिक्स्ट्रा। सो हमें यहाँ पे शॉर्टेस्ट पाथ इसलिए फाइंड करना था क्योंकि वी हैव टू रिटर्न द टाइम इट टेक्स फॉर ऑल द n नोड्स टू रिसीव द सिग्नल। तो अगर हम एक सिंगल सोर्स से अगर हम कोई सिग्नल सारे नोड्स को भेज रहे हैं, तो जो भी एडजेसेंट नोड्स होगा उनके साथ उनके लिए एक ही टाइम पे सबको सिग्नल ट्रैवर्स होगा। तो चाहे हम इस रास्ते से आए चाहे हम इस रास्ते से आए, जिस रास्ते से हम पहले वहाँ पहुँचेंगे उसी टाइम हमारा सिग्नल उस पर पहुँच गया होगा। लाइक अगर मेरे को यहाँ पे मान लीजिए ये वाला नोड 1 to 4 कनेक्टेड होता, यहाँ पे 2 लिखा रहता, तो 2 पे 1 हम पहुँचे 1 पे, एंड देन 1 to 4 हम पहुँचे 2 और प्लस करके, आई मीन 3 मिनट्स में हम 4 पे पहुँचे। एंड इस पाथ से हम ऑलरेडी 2 मिनट में यहाँ पहुँच चुके हैं, तो यहाँ पे पहुँचने में हमें 2 मिनट लगेंगे ना कि 3 मिनट। सो इसीलिए हम यहाँ पे डिजिक्स्ट्रा यूज़ कर रहे हैं टू फाइंड द मिनिमम टाइम टेकन टू रीच ऑल द नोड्स फ्रॉम द सिंगल सोर्स गिवन। यहाँ पे हमें 2 गिवन था। सो मैं ये कोड आपका पेस्ट बिन पे पेस्ट करके डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। सो हैप्पी कोडिंग।